Hello students, welcome to the channel RK Physics. Yet another section. ମୁଁ previous section रे alternating current ଆଉ electromagnetic induction magnetic matter ମିଶିକି ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିଦେଲି। ଏହି ସେକ୍ସନ ରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ କିଛି କନସେପ୍ଟ ରିଭାଇଜ କରିବି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, କିଛି କନସେପ୍ଟ କରି ଦଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କିଛି ରିଭାଇଜ କରିବି କନସେପ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସୋ व्हाट वी डन फर्स्ट now as we know that magnetic flux is directly proportional to current एटा तमे सब पढि दिबो बाबू पढाई देबो सब ट्यूशन रे बा क्लास रे सर पढाई दिबे मु खाली रिवाइज कर दोछि and the magnetic flux is directly proportional to current so phi b equal to केते आसीबो ना L into I phi b is equal to L into I according to Faraday's laws of electromagnetic induction whenever there is a change in flux through a circuit occurs an EMF is induced in the circuit. Whenever there is a change in flux or magnetic flux through a circuit occurs, so an EMF is induced in the circuit. So it is change in flux. That means differentiating on both sides. मैं derivative कर देंगे with respect to time रे differentiating with respect in both sides with respect to time. d phi by dt is equal to हमें कौन जानते हैं ना EMF E equal to minus d phi by dt. That is Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. Laws of electromagnetic induction. EMI. अब MCQ पचारे Faraday का first law कौन देता है ना Faraday का first law it gives the magnitude of the EMF, the induced EMF, magnitude of induced EMF. But the second law of Faraday's second law कौन कहता है और Lenz's law का कौन कहता है it gives the direction of induced current. Direction of induced current. The magnitude देता है कौन Faraday का first law, second law direction of induced current देता है। ताले एठी फेरी आसे पे कौन ना बर्तमान देखो d by dt of phi b is equal to d by dt of L into I. Then d phi by dt equal to L the constant, proportionally constant, inductance को आ जाए di by dt. As EMF is equal to minus d phi by dt. d phi by dt is equal to कते इजबो ना minus of E, that is minus of EMF is equal to L di by dt. So EMF equal to minus L di by dt. That is the expression for EMF in self inductance. Similarly, we can write down for it is for self inductance. Similarly, we can write down for mutual inductance EMF equal to minus M di by dt. जेतेबेले सेल्फ इंडक्टेंस देइ दिबो माने से सेम सर्किट रे EMF इंड्यूस होतबो जो सर्किट रे करंट फ्लो होतबो सेटा ए फार्मूला आसीबो तेतले EMF जेति गोटे सर्किट रे ये तमे करंट चेंज करले एनादर ता पाखरे जो नेबरिंग कॉइल रे यदि कोन होतबो ना गोटे कॉइल रे करंट चेंज करले एनादर कॉइल रे यदि EMF इंड्यूस होतबो सेठी कोन होतबो ना म्यूचुअल इंडक्टेंस आस्ते सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दी जण के कोन हबो ना हमर हेनरी से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ L और N सेम दी जण के यूनिट कोन आसीबो हेनरी दी जण यूनिट कोन आइबो एमसीक्यू पचारे बहुत टाइम सो मु आज एक क्वेश्चन करछि एटा करिवार कारण कोन ना मु आज एक प्रॉब्लम करी वर्तमान बाबू तुम सांग मान को समस्त को शेयर कर दबो जहां द्वारा कि अप्रैल रे जो तुमरो मे फर्स्ट जो एग्जाम स्टार्ट होबा जाउछि से माने फिजिक्स रो प्रीवियस क्वेश्चन यदि एक दिन प्रैक्टिस करिवे सैंपल पेपर वाइज सैंपल पेपर होबा निजे कोनोसी जगह एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवे से माने आराम से भलो करिवे आ यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस न करि कि जिवे ताले एग्जाम टिके प्रॉब्लम हेबा कारण तबर एमसीक्यू पाका 50% पडुची पण एमसीक्यू पाई तुम कोन ना फार्मूला पूरा माइंड रखि दो आ प्रैक्टिस करत हो बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस करत हो सो क्वेश्चन इज कौन फर्स्ट कोजी द करंट पासिंग थ्रू ए चक ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मु करूची कहउथिलो ना से मॉडर्न एबीसी रो यूनिट आईवी से यूनिट आईवी धरिची मु सेल्फ इंडक्टेंस अल्टरनेटिव करंट ईएमआई अछि अंदर कोन कहउची ना ईएमआई एंड एससी करूची क्वेश्चन नंबर तमे देखिबार ए सैंपल पेपर रे मु करूची क्वेश्चन नंबर माने 7 नंबर क्वेश्चन करूची फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि the current passing through a chuck of self inductance 5 Henry गोटे करंट पास करछि गोटे चक कॉइल रे तार सेल्फ इंडक्टेंस केते ना 5 हेनरी माने L इज इक्वल टू केते ना 5 हेनरी फार्मूला अब फर्स्ट चिन्ह जानिबो को दिनसर सिंबल कोन
तापर फार्मूला मन रखिबो ताकू टिके मॉडिफिकेशन सेटा आउ का फार्मूला से रिलेट हे परिबो टिके जदी मन रखिबो आराम से हो क्वेश्चन किछि प्रॉब्लम हो ओके ओके ताने सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2 एम्पीयर पर सेकंड ताने कोन कहूची ना करंट डिक्रीज होची दैट मींस करंट डिक्रीज देखो एटा केमति जानिबो देइची एमति देइची 2 एम्पीयर पर सेकंड तमे भाबि दे कोनी लेखा है इज डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2 एम्पीयर पर सेकंड तमे कोन भाबिबो एटा ना खाली करंट लिख दियासबो करंट डिक्रीज करची ना भूल हे जिवो तमे देखली कोन लेखा छि ना एठी देखो लेखा छि एम्पीयर एठी लेखा छि सेकंड ठीक है लक्ष्य करियो 2 एम्पीयर बाय सेकंड दैट मींस एम्पीयर यूनिट कोन करंट करंट चेंज होची बाय सेकंड का यूनिट टाइम तेनु di by dt नॉट इट इज 2 एम्पीयर मींस करंट नो चेंज इन करंट नो दिट इज द रेट भी कोइछि माने रेट कहबो माने तो टाइम डिवाइड हो दैट इज द चेंज इन करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम di by dt डिक्रीज जेहेतु होइछि तेनु कोन आसे हमर सिंबल ना -2 एम्पीयर पर सेकंड कोन कि बेटा ओनली एम्पीयर पाई करंट नबोनी सेकंड अछि सेति बाय टाइम नबो एम्पीयर पर सेकंड अछि माने कोन हो di by dt जेहेतु डिक्रीज अछि माइनस साइन दिया अछि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल पचारछि इंड्यूस्ड ईएमएफ केत मोय फार्मूला अब तुम पढि के अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्टेंस ना सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ भीतर रिलेशन कोन पढिलो ना सर E = -L di by dt वर्तमान आपण पढैथिले माने वर्तमान मु कोन करबी ना E = माइनस रहिला L लेवल के देछि 5 di by dt इज -2 दैट इज केतला ना माइनस माइनस प्लस 10 वोल्ट तुम यदि -10 वोल्ट और प्लस 10 वोल्ट देखियो तमर कोन हो ईएमएफ रा प्लस 10 वोल्ट एडा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गुड देछि आउडे क्वेश्चन मु करूची से बढ़िया सेम क्वेश्चन देछि ठीक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन गुड कहूची मैग्नेटिक फ्लक्स हो ठीक आउडे कह दूची देखो तमे जेहेतु गोटे कांसेप्ट गोटे फास्ट बुझो कांसेप्ट बुझला पर मु प्रॉब्लम करबी मु प्रथमे कांसेप्ट कहबी तापर गोटे क्वेश्चन करबी सेहि वजह तमे बोलसे बुझी परिबो एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF is equal to we know that minus d phi by dt that is minus d by dt magnetic flux is equal to b dot da or b dot a it is the dot product of magnetic field induction or area vector into dot product of area vector so minus कोन करिबा ना एटा बाहर काढी आनिबो केते रहइबो ना dB by dt चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एटा बाहर काढी आनिबो कोन करिबो ना d dB by dt तन EMF एटा फार्मूला आसीबो तो क्वेश्चन ता सही होन जाई छै कोन दिस क्वेश्चन ता ना क्वेश्चन मोर देछि सही होन जाई केते नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कोइछि magnetic flux through a coil changes from 0.7 weber to 0.2 weber तने प्रथमे phi 1 एटी phi भी मु धरछि से कोछि कोन ना phi 1 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होछि बा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होछि माने कते phi 1 बा एडा होगा हम मित लिखि पारे कते एठी लिखिलो बेटा लिखि पारे जेहेतु एटा कोन d phi b माने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम एटा कोन ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम सो वी कैन आल्सो राइट डाउन दैट इज 5 एटा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स phi 2 minus phi 1 बाय कोन लिखियो dt हम कोन करिया माइनस phi 2 minus phi 1 by dt एटा मन रखियो एमिति भी लिखि पाइबा जोडा कि ए फार्मूला रे पजे पडिछि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.7 वेबर टू 0.2 वेबर माने प्रथमे मैग्नेटिक फ्लक्स केते थिला 0.7 वेबर सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स केते एरा डिक्रीज हे जाइछि कमी जाइछि 0.2 वेबर टाइम केते रहिछि dt बा टाइम धरिबो एठी केते कहिछि ना 0.1 सेकंड द EMF induced in the coil EMF पचारछि तने EMF is equal to वर्तमान में पढिले केते ना माइनस d phi by dt बा d phi b लिखिबो मैग्नेटिक फ्लक्स जेतु माइनस ऑफ phi 2 minus phi 1 by dt माइनस phi 2 केते रहइला ना phi 2 रहइला मोर 0.2 माइनस phi 1 केते 0.7 बाय टाइम केते रहइला 0.1 सेकंड दैट इज माइनस रहइला 0.2 0.7 माइनस 0.5 by 0.1 सॉल्व करले 0.1 सॉल्व करले तब 0.5 by 0.1 that is 5 जेहेतु EMF वोल्ट अछि तने EMF इज इक्वल टू केते आसीबो 5 वोल्ट दैट इज द आंसर
मैं बेले बेले एमती पकई दिए फेज डिफरेंस पचार कौन पचार ना फेज एंगल पचार तुमको कौन पचार जब कह फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड ईएमएफ तीन केस मन रखियो सब कॉन्सेप्ट देखिए तुम पढ़े सार फेजर डायग्राम सब सार पढ़ाई दिबे भलसे फेजर डायग्राम पढ़ाई दिबे सेते बेले तुम आस्तिबो कौन देखिबो जेते हमर तीनटा डायग्राम आसे गोटे आसे प्योर रेजिस्टर्स पाई व्हेन ए सर्किट व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर मु तीनटा कंपेयर करछि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर टिके लक्ष्य करी भलसे केमती करछि अब सब मन रखिबो जेटा हम देखिथिले करंट आउ इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टर द करंट एंड द ईएमएफ आर इन द सेम फेज in case of the AC containing a pure resistor the current and EMF are in the same phase that means the angle between the EMF and current is 0 degree বা phase difference is equal to kete 0 degree that is केमती हम लिखिया जदी अब मु एटा करंट धरिबी ठीक कांसेप्ट ट्रिक से मन रखियो न सब एग्जांपल करि परिबो एटा दि करंट धरिबो एटा तमे EMF धरिबो आंको भीतर जेहेतु माने सेम फेज रे अछंती फाई इज इक्वल टू केता आसीबो 0 डिग्री मन रखियो फेज डिफरेंस आंको भीतर फाई केता आसीबो 0 डिग्री किंतु सबले मन तो करंट सेक्शन मा काट देबो एटा भी करंट अज्यूम करिवो एटा कोन अज्यूम करिवो ना करंट तीनटा मिसे करंट देखो सेम डायरेक्शन में चली किंतु प्योर इंडक्टर रे कोन होता है ना करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ एटा करंट नबो एठी ईएमएफ ता नबो कोडी नबो ना एठी केडे जेतु करंट एठी ईएमएफ लीड करछि करंट लैग करछि माने तळी रहइबो मु कोन कहछि ना इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टर द ईएमएफ लीड्स करंट ईएमएफ ता कहा को लीड करूछि करंट दैट मींस ईएमएफ ऊपर रहइबो ना कारण से लीड करूछि लीड माने कोन टेस्ट क्रिकेट रे कोन हेतै ना को आउछि इंडिया लीड्स ऑस्ट्रेलिया बाय 540 रन्स माने इंडिया कोन ऑस्ट्रेलिया टू 540 रन अधिक अछि माने इंडिया लीड देछि इंडिया लीड्स ऑस्ट्रेलिया बाय 540 रन्स बुझिला ना सो बा फॉलो कइता जे कोन दिदा फॉलो करछि अलगा कथा तो इंडिया लीड्स ऑस्ट्रेलिया बाय 540 रन्स सही बढ़िया एठी इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टर ईएमएफ लीड्स करंट ईएमएफ कहा को लीड करूची करंट को माने ईएमएफ टा बडो ईएमएफ लीड्स करंट बाय एंगल केते +π/2 जेतु लीड करची ना तो +π/2 बुझि पारछ ना बुझि पारनो सही दि पाई किंतु तार उल्टा इन अदर वर्ड्स हम कोइ परिबा इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टर फलसे मन रखो इन एठी तो मन रख देलो प्योर रेजिस्टर रे करंट आ ईएमएफ सेम फेज रे अछि बट इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टर द ईएमएफ लीड्स करंट ईएमएफ leads current by angle +π/2 or in other words we can say that the current lags behind EMF माने ये EMF यदि लीड करिवो ताले करंट कोन करिवो lag करिवो in other words we can say that current lags behind EMF by angle π/2 बुझि पाइलो सिमिलरली एठी भी करंट देबो किंतु एठी EMF ता कोन करिवो lag करिवो एठी करंट लीड करिवो एठी के लीड करथला EMF एठी के लीड करिवो ना करंट लीड करिवो कहा अपेक्षा ईएमएफ जेतु ईएमएफ तोड़ करिवो तने सिमिलरली एटा देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले फेज एटा केना आसीबो +π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले फेज ता +π/2 आसीबो एठी कोन करिवो ना करंट लीड करिवो ईएमएफ अपेक्षा एंगल केते क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले -π/2 एटा π/2 धरिवो कि जेहेतु क्लॉकवाइज डायरेक्शन अछि तेनु एठी कोन फाइ इक्वल टू -π/2 मन रखो इन केस ऑफ द प्योर कैपेसिटर द करंट लैग्स बिहाइंड द करंट लीड्स कर ईएमएफ कैपेसिटर क्षेत्र कोन हो ना करंट लीड करिवो करंट कहा को लीड करिवो ईएमएफ त ईएमएफ कोन हो ना ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट सो इन केस ऑफ द प्योर कैपेसिटर द करंट लीड्स ईएमएफ बाय एंगल π/2 और द ईएमएफ लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एंगल π/2 मन होइना त आको इधर पावर सब काढी परियो बाबू तने पावर एवरेज फार्मूला कोन पडिजो ईआरएमएस आईआरएमएस cos phi मन को केमति करछि देख लक्ष्य कर शॉर्ट क्वेश्चन बता ताने एटा ईआरएमएस ईएमएफ आरएमएस एमति मजे लिखि परिबो ईआरएमएस जे E0/√2 आईआरएमएस जे I0/√2 cos phi जे cos 0 that is E0 into I0 by √2 into √2 जे 2 cos 0 जे 1 that is E0 I0/2 ताने एडी मैक्सिमम आसियो आउ सब देखियो 0 आसियो एडी करूनी प्रथमे तुम बुझे दोछि तापर देखियो केमति को देखौछि तार E0 I0/2 को क्षेत्र रे ना पावर डिसिपेटेड इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टर द पावर डिसिपेटेड इन द प्योर रेजिस्टर केते आसीबो ना E0 I0/2
बट आम देखा ये कौन हो सेम फॉर्मूला एवरेज पावर डिसिपेटेड और पावर डिसिपेटेड इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टर केते आसीबो ना ERMS IRMS cos phi. So as you know that the relation between the RMS voltage and peak voltage E0 is equal to E0 by root 2, IRMS is equal to I0 by root 2 into कते ना cos phi. एडी cos phi केते पुट करबा आको जो फेस डिफरेंस केते 90 प्लस pi by 2 अछि cos pi by 2 cos pi by 2 प्लस pi by 2 हो ना प्लस रो प्लस ने कि माइनस ने जेहेतु cos टा गोटे कोन इवन फंक्शन तार नेगेटिव मध्ये कोन आमे जानचे cos ऑफ माइनस थीटा जे प्लस cos थीटा एज कोन हबो ना cos टा गोटे कोन हबो ना एज cos थीटा इज एन इवन फंक्शन एटा कोन हबो ना इवन फंक्शन ता नेगेटिव ने कोन आसीबो पॉजिटिव आसीबो है ना ता देखो cos pi by 2 माने cos 90 वैल्यू कते 0 cos 90 वैल्यू कते 0 so the average power consumed or dissipated in a pure inductor is 0 मोनो के शॉर्ट क्वेश्चन पता है प्योर इंडक्टर रे पावर केते कंज्यूम हुए ना 0 हुए सिमिलरली एही केस रे देखो तमे एही केस रे एवरेज पावर फार्मूला पका सिमिलरली ERMS IRMS cos phi सो केमति लिखिबा ना ERMS जे E0 by root 2 IRMS जे I0 by root 2 एठी रे आसीयो cos ऑफ केते -pi by 2 cos ऑफ केते -pi by 2 E0 I0 by 2 तमे जानि छ cos ऑफ -pi जे केते cos of minus theta जे cos theta that is also cos pi by 2 तमे cos pi by 2 कते आंसर 0 that is कोड कने 0 माने पावर कोड 0 होची ना पावर आमे देखु छे तार हम पावर कोड देखते पाउचे ना पावर सर हम देखते पाउचे 0 होची कोडी ना प्योर कैपेसिटर रे आ प्योर इंडक्टर रे बट द पावर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टर the AC containing pure resistor the power is maximum in other two cases that means the AC containing pure inductor and a pure capacitor the power consumed in the circuit is equal to 0 এটা MCQ क्वेश्चन সবাই মনে রাখবে এটা सो पुणी नेक्स्ट क्लास में कोन करबी आज एतिक रखुची पुणी नेक्स्ट क्लास रे आगु किछि कांसेप्ट डिस्कशन करबी प्रॉब्लम किछि करबी सो तुम सांग मान को कोन करबो शेयर करबो जा द्वारा से माने बहुत बेनिफिट हेबा द्वारा जदि भल लागिदिबो लाइक करिवो शेयर करिवो फाइनली सब्सक्राइब करिवो जा द्वारा कि कोन हबो ना मते बेसी मोटिवेशन मिलिबो कोन मु आउरी को जते जदि शेयर पिला अधिका देखिले तो मते अधिका मोटिवेशन मिलिबो ना मु एठी आउरी तुम पई कोन करबी बेसी परिश्रम करबी सो थैंक यू।